वेलकम बैक एवरीवन. सो वी एंडेड हियर येस्टरडे. हमने ये सीखा था कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स, करेक्ट. जिसमें 35 मैंने सॉल्व करवाया था आपको एंड यू डिड 102, 88 एंड 69. आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा उसमें. सो मूविंग फर्दर, हम कौन से कन्वर्जन पे थे? डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स. डेसिमल नंबर्स मीन्स द नंबर सिस्टम which we use on daily basis, and binary number system means the number system used by our computers and electronic circuits. Now coming to fractional numbers, say when we use 80 fractional numbers, like numbers containing decimal points, for an example 88.625 here, you know how to convert 88 into binary. We will learn now that how to convert this fractional part. Okay, so to convert a fractional number into decimal number, multiply each bit by 2. What you were doing when you wanted to convert this 88, you were dividing it by 2. For this fractional part, you need to multiply it by 2 and take the integer value out as shown in the following example. In these examples, integers can be converted by double method. ये तो वही है कि पहले से जो सीखा है हमने method. So just for the sake of revision, I'm doing this 88 again. How to convert this 88? Start dividing 88 by 2 and go on taking out the remainder. 88 से 4s the 8, 2 4 2 4s the 8, 2 4s the 8. What is left out is 0. Dividing again by 2, we get 222 and nothing is left out, so 0. Divided again by 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2. What is left is 0. Divide again by 2, 2 5s are 10. What is left is 1. 2 2s are 4. What is left is 1. And like last one, 2 1s are 2 and what is left is 0. So what we got the answer as 10110000. See, 1011000. Okay, now coming to the fractional part. How fractional part is calculated? See, 0.625, 88 we have calculated. Remaining 0.625 is multiplied by 2. What will you get after multiplying 0.625 with 2 is 1.250. 0 is avoidable, so 1.25. Take out this 1 out. Take this one out. Okay, what is left is 0.25. Taking 0.25, multiplying again it by 2, we got 0.5. Take out this 0. What is left behind is again 0.5. 0.5 into 2 is 1.0. Take this one out. Okay, until unless you get this 0, you can go on, but for some numbers it can become a long chain, so you can stop at 4 digits, like 4 bits तक आप रुक सकते हो. Okay, so 88 का आंसर लिखा. Now how to take this? This is upward to downward, मतलब ऊपर से नीचे आना है. 101. Clear है? So this is how you can solve fractional number. This one is your assignment. You have to do it on your own. 69.375. Okay, 69 you know how to. If you want, just because एक ही example explain किया, I can explain it over here. 0.75 into 2. What is 0.375 into 2? It is 0.750. Okay, what will be taken out from here is 0. Okay, then what is left is 0.750 into 2. क्या आंसर आएगा? 1.500. क्या मिला हमें वापस बाहर? 1. 0.500 into 2. क्या मिला बाहर? 1.000. So what we have to take out this 1. So what is the answer finally? It's 0, 1 and 1. So decimal point and 0, 1, 1. Whatever is binary for 69, you have solved plenty of examples for that. Okay, see, we can check the answers. This is the binary for 69.011. Now coming to next, coming to the new number system, that is hexadecimal number system. कल मैंने आपको बोला था lecture में that I'll be sharing one image, but then I thought better to explain it to you. यहाँ पर आप जब ये table लिखवा रही हूँ मैं, you can pause the video and make a note of it. This is very important table. Now यहाँ पर क्या है, जैसे बाइनरी काउंटिंग से हमने नंबर्स निकाले थे बाइनरी, यू मस्ट राइट दिस अप टू 15 इक्विवेलेंट. डेसिमल नंबर 15 तक उनके बाइनरी, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल इक्विवेलेंट हम लिखेंगे. क्यों? धीरे धीरे समझ में आएगा. 15 ही क्यों, वो धीरे धीरे समझ में आएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग फॉर बाइनरी. जैसे कल बाइनरी काउंटिंग के अकॉर्डिंग सिखाया था. व्हाट इज़ बाइनरी फॉर 0? इट्स 0. व्हाट इज़ बाइनरी फॉर 1? 1. What is binary for 2? It is 1 0. What is binary for 3? It's 1 1.
व्हाट इज़ बाइनरी फॉर 4? येस, इट्स 100 डायरेक्टली, क्योंकि 12 के बाद 99 तक कोई भी वंस एंड ज़ीरोज़ का कॉम्बिनेशन नहीं आता है. Coming to 5, it is 101. Then 6 is 110. 7 is 111. 8 is 1000. सी यहाँ पर देख सकते हो, जब 11 आया 3 डिजिट स्टार्ट हुआ, जब 111 आया 3 डिजिट स्टार्ट हुआ. हम करते हैं ना 998, देन 999. जब 999 हाईएस्ट वैल्यू पे पहुँच जाते हैं, वी मूव ऑन टू 3 डिजिट. द सेम वे इट इज, we move on to 3 digits. So the same way in binary counting also it is happening. So 111 largest 3-bit binary number है, 11 largest 2-bit binary number है. Now coming to 4-bit 1000. What comes after that? 1001. ये last lecture में पढ़ाया है मैंने आपको. 1010. What about 11? 1011. Coming to 12, 1100. 13, 1101. 14, 1110. And 15 is 1111. That is the reason मैंने 15 तक लिखा है, because the maximum number which can be represented in 4-bit binary number is 15. ओके, नेक्स्ट. नाउ कमिंग टू हेक्साडेसिमल नंबर. यहाँ पर एक और कॉलम में ऐड, एक रो में ऐड कर देती हूँ. दैट इज़ रेडिक्स. व्हाट इज़ द रेडिक्स फॉर बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम? इट्स 10. वाई इट इज़ 10? बिकॉज देर आर, रेडिक्स पढ़ाया था कल, बिकॉज देर आर 10, just a minute, because there are 10 symbols used in decimal number system. Coming to binary number, the radix is 2. Then hexadecimal, the radix is 16, and octal 8. Why 16? Because there are 16 symbols. That is what we are going to learn now. Okay, now coming to hexadecimal number system. See, this is radix wala part, huh? Don't take it as numbers. This is just radix being shown over here. Now coming to hexadecimal numbering system. What is hexadecimal number for 0? Hexadecimal number system में 0 के लिए कौन सा नंबर है? इट इज़ 0 ओनली. 1 के लिए 1 ओनली. 2 के लिए 2. 3 के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It goes on same till 9. But for 10, see hexadecimal radix 16. That means we have 16 symbols. यहाँ पे 9 पे सिंबल ख़त्म हो जाते हैं. That's why we start combining 1 0 1 1. बट यहाँ पे अभी तक सिम्बल्स ख़त्म हुए हैं क्या? No. कौन से सिम्बल्स हैं? दस कैपिटल में, डोंट राइट इन स्मॉल. A, B, C for 12, D for 13, E for 14 and F for 15. यहाँ पर आपके ये 16 symbols हो गए. So it covers up from 0 to 15. अच्छा, just for knowledge, ये F के बाद क्या स्टार्ट होगा? ये F के बाद स्टार्ट होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आता है. 20 नहीं आएगा, अब यहाँ पर आएगा 1A, 1B, 1C. दिस वे द काउंटिंग ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स प्रोसीड. ओके, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इट वाज 15 तक हमें टेबल में लिखना है. नाउ कमिंग टू ऑक्टल्स, बाद में आते हैं. ये एक कॉलम खाली रखिए. यहाँ पर आप ठीक वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, या अभी पॉज करके इस टेबल को बना लो. दिस इज टेबल विच शोज which shows binary, hexadecimal and octal equivalent of decimal numbers from 0 to 15. Okay, now coming back to our topic, hexadecimal number system. As I have shown you in the table, in this number system, hex means 6 and decimal indicates 10. That is, total 16 symbols are there, which are from 0 to 9, A to F. Its radix is 16, correct? Each number is expressed. Now यहाँ पर वापस वही बात आ गई. Radix 16 है, मतलब hexadecimal number system में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है 2AF, तो इस पर्टिकुलर नंबर में हर एक डिजिट की वेटेज पावर कौन बताएगा? पावर ऑफ 16. पावर ऑफ 10 बताएगा क्या? नो, बिकॉज इट इज़ नॉट डेसिमल नंबर. पावर ऑफ 2 बताएगा क्या? नो, बिकॉज इट इज़ नॉट बाइनरी नंबर. इट इज़ एन हेक्साडेसिमल नंबर. इट इज़ a hexadecimal number, so its weightage will be in the power of 16. You have to remember this. Okay, so the following symbols indicate their decimal values. I have told you earlier, 0 to 9 की डेसिमल वैल्यू सेम है. 10 डेसिमल वैल्यू के लिए A है हेक्साडेसिमल में, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E यूज़ होगा एंड 15 के लिए F. ये याद रखना है आपको, बिकॉज कन्वर्जन्स में अभी आपको काम में आएगा. ओके, सो टू बिगिन विथ, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कन्वर्जन, हेक्स टू डेसिमल कन्वर्जन.
Now hex to decimal conversion. Again, number will be given in hexadecimal. We have to come get it into decimal number. अगर number hexadecimal में है तो उसके हर digit की weightage कौन बताएगा? Power of 16. So we are going to do the 16 raised to 0, 16 raised to 1 वाला method. Okay. So the first question is 9AE. क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो 9AE. Again it is 16 raised to 0, 16 raised to 1, 16 raised to 2. बट इसके साथ मल्टीप्लाई होता है. व्हाट इज 16 रेज टू 0? 1. 16 रेज टू 1 16. 16 रेज टू 2 इज 256. मल्टीप्लाइंग इट विथ द वैल्यू ऑफ डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजिट. ई का डेसिमल वैल्यू क्या है? 14. ए का डेसिमल वैल्यू क्या है? 10. 9 का 9 ही है. So doing this multiplication will give you these answers and adding them will give you the final answer. So 9AE in hexadecimal is 2478 in decimal. I am repeating again, this result has to be written each and every time after every conversion whichever is there. Every conversion जो भी जिस भी number system से जिसमें भी लेकर आ रहे हो आप, you must write this conversion, this result. Okay. Now coming to next, see there are examples which you have to solve on your solve on your own. 2C 6E 3A0 7AB. Now how can you solve this? Again with the same method. Okay, pause the video right here because I'm not going to do this. अगर ये मैं ऐसे एक एक करवाऊंगी तो the duration of the video is going to be very lengthy. तो आप ये सॉल्व करिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट मैसेज मी. ओके, या टेक्स्ट बुक्स भी अब आपको मिल चुकी हैं. यू कैन रेफर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, बट बेटर आई विल सजेस्ट यू डू इट ऑन योर ओन. Writing the solution in the notebook is not enough. You have to solve it. Even this 9AE, you can pause the video, solve it on your own. For reference, you can see this solution. You have to do it on your own. So do the second one, third one and fourth one. Here are the answers for second, third and fourth. Okay. Now coming to next is 7FF.8. Again an hexadecimal number which has to be converted into decimal number. Now 7FF is clear to you. You can do it. What about 0.8? We'll see. Okay. 7FF. Let's do it the way we do it. 7FF 0.8. What is this? 16 raised to 0, 16 raised to 1. You can show the multiplication in further steps. Here you can just write this way. 16 raised to 2. What is 16 raised to 0? 1. 1 into what? 15. What is 16 raised to 1? 16. 16 into what? 15. This is 256 into 7. So doing this multiplication and adding all the answers, you will get the final answer for 7FF. Now coming to 0.8. How this 0.8 can be solved? It is 16 raised to minus 1. याद होगा आपको बाइनरी में हमने 2 raised to minus, सॉरी क्या आएगा, माय बैड. It will be 16 raised to minus 1. What is 16 raised to minus 1? It is 1 upon 16 into 8. Now what is it? It's 1 2s are 2 8s are. Then it's 1 upon 2, that is 0.5. Correct. So whatever answer you get, this 0.5 will be the final answer. Now ये easy था क्या? एवरी टाइम ऐसे होगा कि 6 8 का मल्टीपल मिल जाएगा हमें एंड वील गेट द आंसर इजीली? नो. इन द नेक्स्ट वन यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस आंसर. ये जो आपको डू इट योर सेल्फ करना है ना, ये आपको 2B में अटकाएगा. आई सॉल्व दिस 2B फॉर यू. बट आई वुड सजेस्ट पॉज द वीडियो, डू इट ऑन योर ओन. जिनको नहीं आ रहा है आगे वीडियो देखो. ठीक है. 2AD.2B. Let's do it. 2AD you can solve. Okay. 0.2B. So let's do it this way. 0.2B. करना कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट ही है. 16 raised to minus 1, 16 raised to minus 2. That is 1 upon 16 into 2. And this is 1 upon 256 into what? Into 11. This is going to be 1 8. So this is 0.125, right? But this is this is the area of concern जो हमें करना है. 11 by 256. You have to solve this. 11 को divide करना है with 256. कर सकते हैं?
कैलसी सो 1 मिनट में हो जाएगा, बट एग्ज़ाम में कैलसी अलाउड नहीं है। क्या करना है, लेट्स ट्राई इट। डिवाइड होगा, नहीं होगा, सो 0. वॉट वी कैन गिव इज पॉइंट, लेट्स ऐड 1 more 0. कैन वी डिवाइड इट नाउ, नो, अगेन पुट 1 more 0, पुट अनदर 0, सो 1100. सो सम वॉट 4 टाइम्स हमारा ये अब अप्लाई हो जाएगा. वॉट विल बी द आंसर फॉर इट, 10. 256 इंटू 4 करोगे, इट इज़ 1024. वॉट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इज 76. Can we apply 256 का टेबल टू 76? No. What we have to do is put 0. We have added decimal, तो हम 0 डाल सकते हैं. 760. Now 256 into 2 will give you 512, and 3 will give you somewhere around 718. No, 768. Sorry. So 768 not possible. तो 512 से करेंगे. 8 4 48 is left. 148 is left here. Okay. Now 148 करेक्ट है ना, एक मिनट, 248, सॉरी 248 इज़ लेफ्ट. नाउ क्या करें अभी, 248 का अप्लाई होगा टेबल, नो, अगेन पुट 1 more 0, 2480. नाउ 256 इंटू वॉट इज़ 2480, समवेयर अराउंड 9. मैं बहुत बार कर चुकी हूँ इसीलिए मुझे याद है, आप लोग कर सकते हो. इट विल बी सब जो भी है, बट ठीक है, हमको आगे करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों, बिकॉज हम 4 डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक करेंगे. ठीक है, 0.0429. सो आंसर फॉर दिस इज 0.125 एंड just a minute, 0.0429. correct. Let's add it, 0.1250, बिकॉज यहाँ पे 4 डिजिट्स है तो हम लोग कर रहे हैं वैसे. 0.0429. सो द आंसर टू दिस इज 9761. 0.1679. 0 पॉइंट आएगा क्या आंसर, नहीं. 2AD जो भी है सॉल्व करेंगे, उसका जो भी आंसर आया 0.1679. क्लियर है, देखोगे आप आंसर. 2AD का आंसर 685 है, 2B का हमने अभी अभी सॉल्व किया 1679. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कैलकुलेशन आपकी इस तरह से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी किसी किसी सम में जा सकती है. यू हैव टू सॉल्व इट द वे इट इज़ टॉट टू यू. ओके, now coming to next, the next topic is decimal to hexadecimal. So we will be given a decimal number, we have to convert it into hexadecimal number. Decimal number means हमारे number system को belong किया करता हुआ number मिलेगा. say 149. what is hexadecimal equivalent of 149? क्या हम इस तरह से बैठ के लिखने वाले हैं फिर पता चलेगा 149 का हेक्सा क्या है, नहीं. there is a method of conversion. क्या करेंगे, we have to divide this by 16. okay, dividing this by 16 will give you remainder from 0 to 15. करेक्ट, एंड 0 to 15 में रिमाइंडर आ गया, मतलब हमारे पास 0 to 15 के लिए सिंबल रेडी है. वी विल जस्ट पुट दैट सिंबल. ओके, सो लेट्स डिवाइड इट बाय 16. कैन वी डिवाइड 14 by 16? नो. ओके, 16 into 8 is 128. 16 into 9 is 144. So this will be 16 into 9, 144. What is left is 5. So the answer, आगे ख़त्म. 16 से डिवाइड हो गया क्या, 9 नहीं, इजी ले लिया एग्जाम्पल. सो आंसर इज़ 9 and 5. वी विल नॉट से 95 बिकॉज दिस इज़ नॉट आर डेसिमल नंबर, दिस इज़ एन हेक्साडेसिमल नंबर. आई टेक वन अनदर एग्जाम्पल, से 928. देख रहे हो आप 928 डिवाइडिंग 16 से डिवाइड करते हैं 92. 16 5 ज़ा 80. correct. 80 means what is left is 12. So 128, 16 8s are 128. What is left is 0. Dividing again 58 को 16 से, 16 3s are 48. क्या बचा, 10. So answer is 3 10 and 0. So 3 10 नहीं लिखेंगे, 10 के लिए we have special symbol for in hexadecimal, that is A. So this is our final answer. Okay. Now this one you have to solve on your own. Pause the video right here. मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ because you must do it. वीडियो देखते देखते करते हुए चलिए. अगर आपको लगेगा सिर्फ मैं देख रही हूँ मैं बाद में करूँगा या करूँगी तो इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, 2478 जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर एज 9AE.
Now coming to hex to binary and binary to hex conversion. Now hex to binary क्या कर रहा है, हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है एंड बाइनरी नंबर्स दिए हुए होंगे उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हमें लिखना है, राइट. नाउ कमिंग टू दिस टेबल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं. हेक्साडेसिमल नंबर्स, ये पर्टिकुलर सिंबल्स अपीयर हो सकती है हमारे हेक्साडेसिमल नंबर में, राइट. उनका बाइनरी लिखना है, लिखा हुआ है यहाँ पर उनका बाइनरी यहाँ पर लिखा हुआ है, यस. अगर आप नोटिस करोगे हेक्साडेसिमल में 0 से 15 डेसिमल नंबर्स के लिए 0 to 15 टोटल 16 सिंबल्स हैं और इन 16 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्स टू मैक्स 4 बिट्स यूज़ हो रही हैं, करेक्ट. सो ईच एंड एवरी, कैन आई से ईच एंड एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 4 बिट बाइनरी. द आंसर टू दैट इज़ येस. सो हम यही रूल पकड़ के चलेंगे, रूल बोलता भी यही है और हम यही पकड़ के चलेंगे दैट इवन इफ़ द नंबर इज़ even if for any hexadecimal digit, even if the number is 2-bit binary, read it, listen to me very carefully, even if for any hexadecimal up to से शायद 7 तक ही आएगा, हाँ 7 तक ही आएगा, 7 तक ये नंबर्स के लिए 1 बिट है, 2 बिट है, 3 बिट है, पर हमें हमेशा जब भी हम हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे हम 4 बिट में ही उसको लिखेंगे. बट मैम अभी ये तो 3 बिट है, हम इसको 4 बिट में कैसे लिखें, ये तो सिंगल बिट है, इसको कैसे 4 बिट में लिखेंगे. आई विल री राइट फॉर यू. 0 को हम लिखेंगे 0 0 0 0. मुझे बताइए इससे कोई वैल्यू चेंज हुई? नो. व्हाट विल बी 1? इट विल बी 0 0 0 1. चेंज हुआ? नो. सो एक्सेल मुझे करने नहीं दे रहा है, ठीक है. 0 0 0 1. नाउ दिस विल बी 0 0 1 0. दिस विल बी 0 0 1 1. मतलब 2 ज़ीरोज़ में एक्स्ट्रा ऐड करियो. अब इसमें 2 ज़ीरोज़ ऐड होंगे क्या? नहीं, इसमें एक ही ज़ीरो ऐड होगा. सो 0 1 0 0. कमिंग टू नेक्स्ट 0 1 0 0. कमिंग टू नेक्स्ट 0 1 0 1. नेक्स्ट 0 0 1 1 0. दिस विल बी, कम ऑन टेल मी, इट्स विल बी 0 1 1. सो आपके टेबल में अभी ये चेंजेस करिए, आपने बनाई है. यू हैव टू मेक इट 4 बिट. ये जानबूझ के मैंने पहले 1 बिट लिखवाया था क्योंकि वो है तो वैसे ही ना काउंटिंग के हिसाब से. नाउ यू हैव टू ऐड एक्स्ट्रा ज़ीरोस. वाई? बिकॉज द रूल सेज टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, कन्वर्ट ईच हेक्स डिजिट इनटू 4 बिट बाइनरी कोड. ओके, we have to convert it into 4 bit binary. now यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? just like 8421 BCD. what is 8421 BCD? I'll tell you. please pause the video right here and complete this table. okay, and then now 8421 BCD क्या है? यहाँ पर देखो बहुत easy है. 8421 जो कोड है ना, यही कोड यूज़ होता है BCD में भी, आगे आएगा टॉपिक. बट यही कोड से हम 0 से लेकर 15 तक, ये 0 से 15 या हेक्सा में बोलूँ तो 0 to F तक किसी का भी बाइनरी नंबर इस कोड से पता लगा सकते हैं. दिस इज़ अ शॉर्टकट ट्रिक यू कैन से फॉर एग्जांपल मुझे 9 का पता करना है. नाउ फॉर 9 व्हाट यू विल टेक फ्रॉम दिस नंबर? यू विल टेक 8 एंड यू विल टेक 1. यू वांट 8 and 1, करेक्ट? After adding 8 and 1 you will get 9. so I want 8 to be on, 4 to be off, 2 to be off and 1 on. ऑफ के लिए 0 यूज़ किया एंड ऑन के लिए 1. जो डिजिट उसमें से आपको चाहिए उसके लिए नीचे 1 लिखा, जो नहीं चाहिए उसके लिए ज़ीरोस लिखे. यू कैन चेक, इट इज़ 1001. चेक फॉर 9, इट इज़ 1001. ओके, लेट्स ट्राई इट फॉर से 14. 14 कैसे आएगा? 14 कैसे आएगा? 8 + 4 12 + 2 14. 1 नहीं चाहिए, सो 1 1 1 0. इज़ इट क्लियर? नाउ ये तो 4 बिट हो गए. सपोज 2 के लिए कैसे पता करूँ? व्हाट इज़ बाइनरी फॉर 2? अगर इसमें से कैलकुलेट करना हो तो वी जस्ट नीड 2. वी विल पुट 0 0, वी विल पुट 0 0 1 and 0. सो दिस इज़ 0 0 1 0. आप चेक कर सकते हो. दिस इज़ आर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल 2. ओके, नाउ द फर्स्ट कन्वर्जन इज़ 5AD. कैसे करेंगे 5AD को कन्वर्ट? 5 का बाइनरी लिखेंगे, A का बाइनरी लिखेंगे, D का बाइनरी लिखेंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. 4 बिट में A का मैम कैसे लिखें? हमें याद नहीं है. A इज़ 10, ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको. A 5
पता ही है क्या है, D इज़ योर 13 नंबर। तो इनका 5 का, 10 का और 13 का बाइनरी लिखना है। कैसे लिखेंगे? वही 8421। बताओ 5 का बाइनरी क्या होगा? 0101। देखो यही लिखा हुआ है, यस। व्हाट इज़ 10 का बाइनरी? 8 एंड 2 इज़ रिक्वायर्ड, 4 एंड 1 को ऑफ रखेंगे। सो 1 0 1 0। देखो यहाँ पर वही है। D इज़ 13, कैसे आएगा 13? 8 4 12 प्लस 1 13। सो 2, वी डोंट वांट दिस 2, सो 1 1 0 एंड 1। सी, यही लिखा है हमने। क्लियर है सबको? सो हेक्स टू बाइनरी इज़ वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू राइट 4 बिट इक्विवेलेंट ऑफ द hexadecimal digit which you can see. Okay, now next you must pause the video right here and solve this. C का लिखो, 9 का लिखो, F का लिखो, पॉइंट दे दो, 2 का लिखो, A का लिखो। मैम 2 का तो 2 ही बिट है, 1 और 0, तो क्या करें? 1 और 0 लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। यू हैव टू राइट 0 0 1 0। ओके, A इज़ 1 0 1 0, पॉइंट। So C का, 9 का, F, point 2 है। One thing is missing over here, one more step should be done in both of this is, लास्ट में आपको combine पूरा लिखना है, 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1। This way you must write and put the radix. Okay, and same goes here. Clear है? Now next is converting binary to hex. We will be given binary number, we have to come to hexadecimal number. Now coming, ऐसा चेन मिला है, इसमें से हेक्साडेसिमल लेकर आना है। खुद सोच सकते हो आप क्या करेंगे। ऑन द अदर हैंड, टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू हेक्सा, मेक द ग्रुप ऑफ 4 बिट। देखो 4 बिट लिखते हैं तो ग्रुपिंग भी 4 बिट का करना पड़ेगा। एंड जैसे ही हम 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे, इनमें से कुछ भी अपीयर होता हुआ दिखेगा, हम उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट वहाँ पे डाल देंगे। नहीं समझा? वेट, डोंट वरी, we will do the grouping. कैसे? Just I'm mentioning the direction, we have to go into this direction. Okay, let's start grouping. कैसे कर रही हूँ मैं, एकदम ध्यान से देखिए, समझेगा। 4 लीजिए, 1 2 3 4। क्या लिया? 1 1 1 1। नेक्स्ट 4 लीजिए, क्या है ये? डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 1 0 1 1। आई बात समझ में? नाउ बताइए, व्हाट इज़ 1 1 0 1? तो मैम वापस टेबल रेफर करें क्या हम? नहीं, यू कैन डू इट ना बाय 8 4 2 1। देखो ना कौन सा डिजिट ऑन है। 8 ऑन है, 4 12, 2 नहीं है, 1 13, सो दिस इज़ 13। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ 1 ओनली। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ऑल आर ऑन। 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15। सो ऐसा छोड़ दे मैम? नहीं। क्या ये हेक्साडेसिमल है? नहीं। 13 इज D, 1 रिमेन्स 1। F के लिए क्या लिखेंगे? सॉरी, 15 के लिए क्या लिखेंगे? F लिखेंगे। करेक्ट। सो आंसर टू दिस इज D1F। इज इट DIF? I हो ही नहीं सकता, I सिंबल है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, दिस इज फॉर यू टू डू ऑन योर ओन पॉइंट में। नाउ जस्ट ये खुद सॉल्व करेंगे आप लोग, मैं यहाँ पर वीडियो एंड करूँगी। इसके लिए सिर्फ एक हिंट बता रही हूँ, यहाँ पर इस ग्रुपिंग इस वे से होगा, यहाँ पर ग्रुपिंग इस डायरेक्शन में होगा। आप बोलोगे मैम 4 ही तो है, एक ही ग्रुप बनेगा। बनाओ भले एक ही ग्रुप, बट आगे चल के जब लॉन्ग चेन मिलेगी, ग्रुपिंग पॉइंट के बाद इस डायरेक्शन में होगी एंड यहाँ पर इस डायरेक्शन। दिस इज़ लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम LSB टू MSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, so next is octal number system, which we will be doing in the next video. Okay, so bye for now.